السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ کامیاب ہے یہ اورنگ آباد کے ان غریبوں کی کامیابی ہے جو تڑپ رہے تھے، ترس رہے تھے اپنی آواز کو دیکھنے کے لیے۔ یہ اورنگ آباد کے ان بے زبانوں کی کامیابی ہے جو ظالموں کے تلخ جملوں کو سن سن کر ان کے دل اور کلیجے کو تکلیف پہنچتی تھی۔ میں آج ادھو ٹھاکرے کو سولاپور کی عظیم سرزمین سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسا ہم نے اورنگ آباد میں کامیابی حاصل کی اللہ کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ تعالی سولاپور میں بھی اللہ ہم کو کامیاب اور کامیاب کرے۔ اور رہا سوال مجھے سانپ کہنے کا، تو میری اماں میرے کو سانپ نہیں سمجھتی، اپنا بیٹا سمجھتی۔ اب ان کو سانپوں میں رہنے کی عادت ہے، شاید اس لیے ان کو ہر چیز صاف نظر آتا ہے، مگر مجھے لگا ہے کیونکہ ادھو ٹھاکرے دیویندر فڈنویس کی چالاکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ادھو ٹھاکرے مودی سے ڈرتے ہیں، اس لیے مودی کے پاس بھی داڑھی ہے تو وہ داڑھی والے کا غصہ یہ داڑھی والے پہ نکالتے ہیں۔ میں ادھو ٹھاکرے سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا غصہ ادھر نکالنا، ادھر نہیں آنا، ادھر نہیں آنا، ادھر ہی نکالو۔ آپ کو آپ کی پارٹی کو، آپ کے بیٹے کو CM بننا ہے نہیں بننا ہے ادھر، ہمارے کو صرف سولاپور کے اسمبلی سیٹ سے مطلب، اور ہم یہاں سے کامیابی حاصل کر کے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اس طرح کے واہیات بیانات سے نہ ہمارے دلوں میں کوئی غصہ، نہ ہمارے دماغ میں کوئی نفرت پیدا ہوگی، بلکہ ہم پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ ایسے فضائی طاقتوں کا ہمارے بزرگوں نے مختلف طریقے سے ان سے پنجہ آزمائی کریں۔ اور میں BJP اور شیو سینا کانگریس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی مقابلے کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں مقابلہ کرتا رہوں گا۔ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، کیونکہ میری زندگی کی چابی کسی حکومت کے پاس نہیں ہے، میری زندگی کی حیات صرف اللہ کے پاس ہے، اور جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں آپ تمام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سعودی اویسی اسی طرح دیوانگی سے بولتا رہے گا۔ میری دیوانگی کیا ہے کہ میرے زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ مظلوم عوام میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ میں کیوں مہاراشٹر میں پورے ہندوستان میں مارا پھرتا ہوں؟ اس لیے پھرتا ہوں کہ میری زندگی کے یہ سال ختم ہوتے جا رہے ہیں اور نہیں معلوم کہ کب مجھے وقت واپسی کا اعلان ہو جائے۔ میرا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ نے جو مجھے مقام دیا، جو عزت دی، اللہ نے مجھے جو کچھ بھی صلاحیتیں دی، میں اس کا صحیح استعمال کروں، اور اس کا استعمال یہی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو میں جا کر آپ سے گزارش کروں، آپ کے ہاتھ پکڑ کر، آپ کے اپنے سینے سے لگا کر آپ سے اپیل کروں کہ خدا کے لیے متحد ہو جاؤ۔ یاد رکھو، یہ جو ہمارے ملک میں یہ جو کالے بادل منڈلا رہے ہیں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ کالے بادل چھٹیں گے، مگر کیسے چھٹیں گے؟ صرف ہمارے جذباتی نعروں سے نہیں، ہمارے آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو سے نہیں، یقیناً اگر ہمارے دل سے ایک آواز نکلے گی اور ہم تمام متحد ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو ہم ان کالے بادلوں کو اپنے اتحاد طاقت کے بنا پر اس کالے بادلوں کو ہٹائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک نئی روشنی سولاپور سے جو فاروق کی کامیابی سے نکلے گی وہ پورے مہاراشٹر کے عوام کو ایک امید باندھے گی۔ میری دل سے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریے۔ رہا سوال یہ کانگریس پارٹی کا، میرے بھائی عجیب و غریب ہے، 2 دن پہلے کانگریس کے صدر راہل گاندھی آئے تھے، اور جو کل دھاراوی میں جلسہ ہوا، میں ایمانداری سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 25,000 لوگ اس جلسے میں تھے، اور جب کانگریس کے صدر آئے 3 یا 4,000 لوگ بھی نہیں تھے۔ تو عوام خود اب جان چکی ہے کہ یہ جو پارٹی ہے، دیکھیے اگر آپ میڈیکل شاپ میں جاتے دوا لینے کے لیے تو دوا کون سی دیتا آپ کو؟ جس کی ایکسپائری ڈیٹ ختم نہیں ہوئی۔ کانگریس پارٹی کی جو دوا ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ ہو چکی ہے، تو ان کی
कि दिखने में दवा जो है बड़ी कीमती है, मगर मेरे पास जो माजून है बड़ा सस्ता है। अब माजून क्या होता है हकीम से पूछ लो आप। तो हमारी दवा महंगी नहीं है, कांग्रेस की दवा बहुत महंगी है, शिवसेना की दवा बहुत महंगी है, बीजेपी की दवा बहुत महंगी है। हमारे पास एक ही गोली है और उस गोली का नाम है तकबीर अल्लाहु अकबर। वो गोली हम खा लिए पूरे अमराज निकल जाते, वो गोली को हम जबान पे ला लिए तो तमाम इफलास बीमारियां दूर हो जाते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, एक नौजवान को मौका दीजिए जो जुस्तजू कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और मैं जो इनको देख रहा हूँ, इनसे गुफ्तगू करता हूँ, तो मेरा विजदान मुझसे कह रहा है कि अगर अल्लाह इनको कामयाब करेगा आपके वोट और दुआओं से, तो यकीनन ये सोलापुर में तमाम लोगों की खिदमत करेगा। और आपको भी जरूरत है आपके एमएलए की, हमारे बहुत से मसाइल हैं। हमने बल्दिया इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, अब हमको आगे बढ़कर यहाँ से अपना एक विधायक को, अपने एमएलए को कामयाब और कामरान करना है। मेरी आप तमाम से फिर से गुजारिश है कि 21 तारीख के दिन सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलिए। हमारे वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी हैं, मेरे भाई आप अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान के वजीर आजम हर जगह जहां पर जावे, और आज तकरीर करके कहीं पर बोले कि जो 370 की मुखालिफत कर रहा उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना है। नरेंद्र मोदी साहब, सोलापुर में पानी नहीं आ रहा, कहां डूबेंगे हम? पानी नहीं है ना, इतना बड़ा तालाब में पानी आया, आप पानी लाओ, हम डुबा देते शिवसेना बीजेपी को इंशाअल्लाह। पूरा बारिश हुई, तालाब में पानी भरा नहीं भरा, 5 दिन में ओनली 1 टाइम पानी और आप बोल रहे चुल्लू पर पानी। अरे चुल्लू पर पानी रहा तो पी लेंगे, डूबेंगे कहीं को उसमें। आप जरा गौर करो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के 5.5 साल में आप नौकरियां नहीं दिए। अब महाराष्ट्र की सरकार ये बोलती है कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या 5 साल से क्या मेहंदी लगा के बैठे थे हाथों को? तुम लगा नौकरियां क्यों नहीं दिए गरीब बच्चों को, चाहे किसी मजहब का रहने दो, नहीं दिए। नरेंद्र मोदी बोलते मैं ट्रिपल तलाक का कानून बनाया, दम है तो वापिस लेके आओ। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपको फिर से बताना चाह रहे, यकीनन आप बहुत होशियार हैं और चालाक हैं। महाराष्ट्र या हिंदुस्तान के मुस्लिम अक़लियत का मसला ट्रिपल तलाक नहीं है। अगर आपकी पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करी है, तो फिर आप महाराष्ट्र के मुसलमानों को आरक्षण क्यों नहीं देते? आरक्षण दीजिए ना। जब आलाजात के मराठों को आरक्षण मिल सकता है, तो एक गरीब, एक पसमानदा कौम जिसके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, जिसके बच्चियों का सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है, हमारे मुस्लिम अक़लियत के इलाकों में ड्रेनेज का, पानी का इंतजाम नहीं है, गवर्नमेंट के स्कीमों में हमको जाती घर नहीं मिलते, गवर्नमेंट के ऑफिस में आपको मुस्लिम मुलाजिमतों में कोई मुसलमान मुलाजिम नजर नहीं आता। महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम आईएएस ऑफिसर नहीं है। महाराष्ट्र में 2 या 3 मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर हैं, ग्रुप 1, और ये तमाम लोग कहाँ हैं? मगर हमको आरक्षण नहीं देते आप, और बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करते सबका साथ सबका विकास। मेरे भाई याद रखिए, ये लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम अक़लियत को खुश करना है तो बुला के 50,000 रुपए दे दो, एक उर्दू का मुशायरा कर दो। यकीनन उर्दू का मुशायरा होना चाहिए, मगर उर्दू का मुशायरा गरीबों को, मुस्लिम अक़लियत को ताकतवर नहीं बना सकता। आरक्षण, रिजर्वेशन मुसलमानों को एम्पावर कर सकता है, मगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी मुसलमानों को एम्पावर करना नहीं देखना चाहती, वो ताकतवर नहीं देखना चाहती। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम अक़लियत के गरीब बच्चे, वो 55 जात बरादरियों के बच्चे पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बने, कभी कलेक्टर बन जाए, कभी सोलापुर के पुलिस का कमिश्नर बन जाए, कोई एसपी बन जाए, कोई डीएसपी बन जाए, कोई आरडीओ बन जाए, कोई तहसीलदार बन जाए। वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम अक़लियत को सिर्फ अपने गुर्बत में उनको उलझा कर रखो, इनको पिछड़ा रखो, इनको कमजोर रखो। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम को बताना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मुस्लिम अक़लियत की आबादी 12% के करीब है, 1.5 करोड़ की आबादी है। अगर महाराष्ट्र को ताकतवर बनना है तो आप इन गरीबों को पिछड़ा नहीं रख सकते, इनको आपको उनका मुकाम दिलाना पड़ेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
मुस्लिम आरक्षण का मुतालबा करती है और करती रहेगी। इस इलेक्शन में कामयाबी के बाद ही जब आप अपने वोटों से मंजलिस के नुमाइंदों को एमएलए बनाकर महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे तो वहां पर फारूक साहब और दीगर हमारे एमएलए मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई को जारी और सारी रखेंगे। इसलिए भी आपको मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। आप अंदाजा लगाइए कि नौकरियां कहीं नहीं मिल रही हैं, गरीबों को नौकरी नहीं मिल रही, तो मोदी की कैबिनेट का एक मंत्री आकर कहता है कि 2 अक्टूबर के दिन 3 पिक्चर रिलीज हुई तो उन्होंने बोलते कि 120 करोड़ का धंधा किए। 120 करोड़ का धंधा करे तो बोलते हिंदुस्तान के इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई। अरे हम आपसे पूछना चाहते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी के नाम पे पिक्चर आई, वो फ्लॉप हुई, हिट हुई? मेरे ख्याल से बेचारा 1 करोड़ 2 करोड़ का धंधा नहीं कराऊंगा और आप बोल रहे कि 3 पिक्चर। आप अंदाजा लगाइए कि कैसे गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। बड़े बड़े माहिरीन कह रहे हिंदुस्तान की इकोनॉमी अब डुगमुग है, डुलमुल है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी आवाज को मजबूत करें। और मैं आपसे अपील भी कर रहा हूं कि बाबरी मस्जिद के मुकदमे के लिए, उसके फैसले के लिए अल्लाह से दुआ करिए। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसाफ करा दे। दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमको हमारा हक लौटा दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कई मीडिया के लोग मुझसे पूछते हैं ये बाबरी मस्जिद और मंदिर के बारे में बोलो। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा और हम देखेंगे फैसला क्या देंगे। फैसला क्या आता है हम भी देखना चाहते हैं, क्योंकि हकीकत तो ये है कि जब 28 और 29 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई थी, उस वक्त एक कलेक्टर थे, उनका नाम ओपी नैयर था। आपको मालूम वो नैयर कलेक्टर क्या किए, बंद कर दिए। और उसके बाद उस वक्त बीजेपी से पहले एक जनसंघ थी, जनसंघ ने उनको अपना एमपी बनाकर पार्लियामेंट भेजा। 1986 में ये कांग्रेस के राजीव गांधी की हुकूमत थी। पूछो शिंदे साहब से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कल मेरे पे केस फाइल कर दो। आप क्या किए 1986 में? जो जज साहब, सुनो, जो जज साहब जजमेंट लिख रहे थे, उन्होंने कैसा जजमेंट लिखे ताले खोलने का? उन्होंने कागज नहीं देखे, उन्होंने क्या देखे कि मेरे दफ्तर की दीवार पर एक बंदर बैठा हुआ है जो किसी से खाना नहीं खा रहा। फिर वो बंदर उनके घर के दीवार पर दिखा देते उनको, उन्हें खाना नहीं खा रहा, तो उन्होंने समझे ऊपर वाले से इशारा आ गया, इसलिए मैं कुफ्र खोल दिया। मैं भी बोलूं कि मेरे घर पे आके मोर बैठा, मेरे को बादशाह बनना है तो हिंदुस्तान का बना देते मेरे को। आप ये अदालत है क्या? बोलो आप कि घर, मेरे ऑफिस पे, मेरे घर पे बंदर बैठा तो मैं समझ गया कि प्रभु से कुछ फरमान आया है। यानी हर कोई ये बोलेगा कि नहीं, मेरे ख्वाब में शेर आया था और बोला कि तू शेर बन जा, तो बन जाते क्या? अब ऐसा फैसला आया, इसीलिए हम देखना चाह रहे हैं फैसला क्या आएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से मसले मसाइल हैं, मगर एक ही हल है, याद रखो आप, नाइंसाफी का और अपनी आवाज को मजबूत बनाने का, इज्जत का मुकाम हासिल करने का। हिंदुस्तान की सियासत का एक ही पैगाम है कि अपने वोटों से अपने पार्टी के नुमाइंदों कामयाब करो। और मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं कि 21 तारीख के दिन आप अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मंजिल को कामयाब करेंगे। क्या आप तमाम मुझसे वादा कर रहे हैं कि 21 तारीख को मंजिल को वोट देंगे? इंशाअल्लाह आप अपना वोट डलाएंगे भी, डलवाएंगे भी और सबको तरगीब भी करेंगे और घर घर जाकर बोलेंगे ओनली मंजलिस, ओनली मंजलिस, ओनली मंजलिस। और फिर इंशाअल्लाह ताला सुबह उठते की जरा नमाज फजर पढ़ के जरा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, खाली सा लेके ये जिस्म ताजा हो जाएगा। और दबा के जाइए पोलिंग बूथ को, अपनी माँ को, अपने घर वालों को, ज़ईफ लोगों को लिख जाइए। नौजवानों, मोटरसाइकिल पर फिरने की जरूरत नहीं है, पहले अपना वोट डालो, उसके बाद घर वालों का वोट डलवाओ, उसके बाद फोन खोल के व्हाट्सएप पे मैसेज डालते रहो, जाके वोट डाल, पतंग को डाल, पतंग को डाल, पतंग को डाल, पूरा व्हाट्सएप पे फैला देना, जाओ वोट डालो, वोट डालो। एक एक वोट पड़ेगा तो यकीनन हमारे उम्मीदवारों की कामयाबी होगी। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नांदेड़ जाना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।